Today, we will learn about Python, a general purpose coding language that facilitates backend development, software development, data science, writing system scripts, etc. Today's session expert is Dr. Maya Rathore, and therefore I now hand over the session to you, ma'am. Thank you, CG ma'am. Good morning, students. I am Dr. Maya Rathore, today's session expert for Python programming. I hope you will really enjoy the session truly. So let's start with the Python session. Before starting the Python, I wanted to discuss some of the things about the Python programming. Why we are going for the Python programming? Why we are learning Python programming? Because before learning something new, we have lots of questions in our mind. Why? So there are lots of technologies already available in the market, like Java programming. You have heard about C, C++, .NET, PHP. When lots of programming languages are already available, then why we are going for the Python programming? Why we should learn Python programming? See, each language, आपने अभी तक जितनी भी लैंग्वेज सुनी होगी, देखी होगी, हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग का. Every language is having its own syntactical structure, its own structure for programming. But what I feel with these programming languages is that the programming structure is very complex. We have to keep a lot of things in our mind. What kind of data structure we have to select, what kind of data it is. So what kind of data type I have to put in front of when the data is of kind whole number, when the data is of kind alphabets, when the data is of kind strings, what data type I should select. Okay, so lots of hurdles with that programming language. So having seen towards that certain problem, the programming structure, the syntactical structure, the few number of libraries, the Python comes into existence. Here, the programming structure is very simple, easy to learn. Anybody, the person who is from the computer field, or it doesn't matter the person is from computer field or not, anybody can learn Python very easily in a very simple manner. Okay. The next purpose for choosing the Python is that learning the Python is that we all are looking towards the social media websites daily. Every one of us is dealing with the social media sites every day. Whenever a post is coming on social media, lots of people puts lots of comments over there. Okay, lots of image processing softwares are there. We put comments on videos, we put comments on audios, we put comments on text in text formats also. So what is the meaning of that comments? What we will do? What a particular video? What is the purpose of collecting the comments? What is the purpose of comments, collecting the comments on a particular video, text, and audio? What the person will do while collecting these comments? Okay. So when the huge amount of data is gathered over the internet, huge amount of data coming from various sources over the internet, over the world, over the country, what persons will do, what persons will do with this data, where this data will be handled, where this data will be stored. Okay. So all this, the only thing is that this data will be analyzed for making a certain kind of conclusion, for making a certain kind of decision. Right now, we all are, unfortunately, we all are facing the situation of COVID-19. Every day we are looking how many patients are suffering from the COVID, what is the death ratio per day. In each country, you can get the data of how much persons are infected, how much persons are suffering, and how much persons are discharged every day. How? The data is in millions. How you can represent the data, in terms of graphs, so that you can better understand which country is leaking, what is the status of COVID-19 in America, what is the status of COVID-19 in India, and what is the status of COVID-19 in other countries. Since the data is huge, how we can represent it manually, how we can assume it manually. We should have certain things so that we can represent the data. We can represent the data in a graphical format, in graphs, in bar graphs, either in bar graphs, in bar charts, in pie graph, and
line graph, scatter graph. So data science is one of the latest challenging field that can be dealt with the Python programming very easily, because Python provides a huge built-in support for standard libraries. Uh, Now you will ask, what are the libraries? What is the purpose behind the libraries? The huge support of libraries makes the tasks very easy. How? Writing a few lines of code, you can solve a very big problem in a minute. Okay, few lines. While in other languages you have it is not necessary that for solving a particular problem built-in libraries are already provided by the particular language. But in Python, for every kind of task, whether you wanted to perform a task related to your mathematics, whether you wanted to perform a task related to your matrix operations, whether you wanted to perform tasks with your statistics, what a high kind of statistics calculations you can perform, the huge number of libraries of Python. Okay, so let's start. Okay, so Python programming, it is a high level interpreted scripting language, which was first developed in 1980s by Guido van Rossum at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Okay, mind the every word of this Python is a high level. High level means what? The abstraction level of Python programming is very high from the operating system, the hardware level of your system configuration. Okay, so it follows the high level language, means every word of Python programming, whatever programming you will do with Python environment, it follows the English like words. It uses the English like words so that to make the programming very easy. Second one is interpreted scripting language. Interpreted scripting language means what? Python is a scripting language which is interpreted. It means whatever program you will write here, whatever program, whether it is a small program or a long program, whatever program you will write here, it is directly interacting with the interpreter. There are two terms, compiler and interpreter. Compiler compiles the whole program at once, create the object machine, converts the source program into machine program, and it takes lots of time to conversion from source program to machine language. Okay, but when you are using Python programming, it is an interpreter language. It is directly execute your program into the interpreter. No need to convert the source program into machine language. It is directly executing your program. Developed in 1980s by Guido van Rossum in the lab of Netherlands. Today we are going to discuss these table of contents in our today's Python session. First, we have to understand Python environment setup, how we can set up the environment for Python programming. What are the various modes of Python programming? What are the basic concepts? Among this, we will try to learn about the various identifiers, keywords, numbers, and random numbers, strings, lists, tuples, and dictionary. What is the purpose of input functions? What are the various decision making and looping statements in Python programming? Working with dictionary, sets, indexing, slicing, we will learn all about this. We will try to learn all these concepts in our Python session. And the gist of this Python session is working with NumPy Python library along with the data visualization using Matplotlib. Okay, NumPy Python library is basically mostly the data which are coming from the various sources. It should be maintained in a array, in the form of an array that you have. I think you in 11th and 12th, you people learn, those who are from PCM field, matrices. Okay, so the huge data is maintained in the form of a matrix, in the grid form, in the tabular form. So NumPy is the library to interact with the large amount of data, and data visualization using Matplotlib. We can plot the different graphs according to the data. And here I provided the link where you can suppose I assume nobody have installed Python in your machines. So here I have provided a link so that you can execute the Python programming online through the browser. Apart from that, 3 different ways you can now coming to the Python environment setup. Here you can use Python in 3 different ways. First one, I am talking about the beginner level. If you are a beginner and you wanted to have some basic knowledge about a Python programming, then directly go to the Google
and search for the online Python editor, then you will find a link like www.tutorialspoint.com.executepythononline.php. Okay, so that you can use for online working over cloud. Online working over cloud, you can use this link to click to work on the Python programming for the basic functionality. Okay, तो यहाँ पर जो Python environment की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम Python के लिए 3 तरीके से Python प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला आपका है कि अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर लर्निंग है पाइथन में, ठीक है, तो उस केस में आप इस URL पे जा सकते हैं tutorialspoint.com execute_python_online.php। ओके, सिंपली टाइप आप गूगल पर टाइप करें ऑनलाइन पाइथन एडिटर, तो नंबर ऑफ पाइथन एडिटर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी उनमें से इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पाइथन का एनवायरनमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं आपको अभी जस्ट इसको चेक करके बता देती हूँ जहां से आप पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट गो टू गूगल, पेस्ट दिस लिंक, यू विल फाइंड दिस द फर्स्ट लिंक यू हैव टू क्लिक। This link has been opened and in front आपके सामने ये वाली पाइथन की स्क्रीन आएगी जिस पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पाइथन की स्क्रीन है वो दो विंडोज में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दिस पार्ट, द लेफ्ट हैंड पार्ट एंड द राइट हैंड पार्ट। ओके, एवरीवेयर अभी हम जो दूसरे 2 तरीके देखेंगे उनमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट है इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। व्हाट इज कॉल्ड इट? स्क्रिप्ट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आपको कभी जरूरत लगे कि हमको देखना है कि लास्ट टाइम हमने क्या कोड किया था, तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में अगर आप कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसको सेव करें। और जब आप सेव करें, जैसे अभी तक आपने CSS और HTML पढ़ा है, ठीक है, तो CSS को जब हम सेव करते हैं तो .css लगाते हैं, HTML को सेव करते हैं तो .html एक्सटेंशन लगाते हैं। तो जब भी आप पाइथन में कोई फाइल बनाएंगे तो आप उसका एक्सटेंशन देंगे .py। ओके, पाइथन फाइल को सेव करने के लिए आप हमेशा फाइल नेम .py एक्सटेंशन यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्क्रिप्ट मोड। जब भी आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो ये जो प्रोग्राम एक बार आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, आप 10 स्टेटमेंट लिखें, 20 स्टेटमेंट लिखें, वेदर छोटा प्रोग्राम है या बड़ा प्रोग्राम, ठीक है, इट विल बी कंपाइल्ड एट वंस। एक ही बार में आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा। ठीक है, तो हियर इन स्क्रिप्ट मोड हम क्या यूज करते हैं? पाइथन वर्क्स विद द कंपाइलर। राइट हैंड साइड, हियर यू कैन फाइंड द राइट हैंड साइड। Whatever you will write here in script mode, आप जो भी स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, आपको उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करके बटन है। ठीक है, आप इस एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करें, you will get immediate output here। ठीक है, this window is called your output window। ठीक है, दिस इज योर, ये आपकी स्क्रिप्ट विंडो है और इसको आप क्या बोलेंगे? आपकी आउटपुट विंडो, जहां पर आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे और यहाँ पर इमीडिएटली उसका आउटपुट आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, एंड दिस इज ये आपकी स्क्रिप्ट मोड जहां पर आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है जिनके पास पाइथन अभी अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने अपनी मशीन पर पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग अवर सेशन, जो भी मैं आपको ट्रेनिंग अभी देने वाली हूँ। ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगेन आप इनिशियल प्रोग्रामर हैं, बिगिनर हैं, आप ज्यादा हर्डल नहीं लेना चाहते किसी चीज का। ठीक है, तो आप क्या करें? anaconda.org पे चले जाएं, गूगल पे जाएं, आप यहाँ पर गूगल पर आए, आपने यहाँ पर लिखा एनाकोंडा। एनाकोंडा इज अ फ्रेमवर्क फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर इंस्टॉलिंग इंडिविजुअल एडिशन। जब भी आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, तो एनाकोंडा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल। ठीक है, तो एनाकोंडा जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसको बोलते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। आप डायरेक्टली इसको anaconda.com की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, वी हैव टू गो फॉर द इंडिविजुअल एडिशन। हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल एडिशन, क्योंकि हम हमारे पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल एडिशन को सिलेक्ट करेंगे।
ओके, इंडिविजुअल एडिशन को सिलेक्ट करने के बाद आप पाइथन एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल कर लेंगे। एनाकोंडा नेविगेटर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि जब एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल हो जाएगा तो दिस विल बी द इंटरफेस, this will be the interface for Anaconda Navigator. Okay, after installation. Now what we have to do, अब हमें इसके बाद क्या करना है, आपको Python Anaconda डाउनलोड करने के बाद, Anaconda Navigator डाउनलोड करने के बाद आपको स्पाइडर को लॉन्च करना है। इसको लॉन्च करेंगे, देखिए टर्म्स आर वेरी इंटरेस्टिंग हियर. Like Python programming, you can observe Python, Anaconda, Spider, everything is very interesting. The terms are very interesting. Okay, now you have to launch the Spider. Okay, when you launch the Spider 4 to work with the Anaconda Navigator and perform your Python programming करने के लिए हमने Anaconda को लॉन्च कर दिया। देखिए सेम विंडो यहाँ पर भी अपीयर हुआ जो अभी हमने ऑनलाइन एडिटर में देखा था। ओके, तो यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन एडिटर अवेलेबल है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। अगेन द लेफ्ट पैनल जो है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट मोड बोलेंगे। और ये जो राइट पैनल है, देखिए राइट पैनल में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, राइट पैनल में दिस इज द इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, हमने कहा कि पाइथन में हम दो मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जहां हम कंपाइलर का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड मतलब ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का क्या मतलब है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर को ऐड करना है और मुझे इमीडिएटली उसका रिजल्ट चाहिए, मुझे उसका इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मुझे इमीडिएटली रिजल्ट मिल गया और डायरेक्टली आई कैन राइट 20 + 30, immediately I get the result. But the problem is that आई एम गेटिंग ऑल दिस रिस्पॉन्सेस। मुझे यहाँ पर जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं ऑन द फ्लाई मिल रहे हैं। मतलब इमीडिएटली मुझे टेस्ट करके देखना है कि अगर मैं 1000 + 50,000 को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, या 1 लाख + 7987 को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी रिस्पॉन्स देखना है वो इंस्टेंटली देखना है। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मोड हम तब यूज करेंगे। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जो भी आप इंटरैक्टिव मोड में लिखेंगे आप उसको सेव नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑन द फ्लाई आंसर के लिए, ऑन द फ्लाई कोडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन आपको परमानेंट लेवल पे अगर आपकी कोडिंग को सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो हम कहाँ कोडिंग करेंगे, हमारे स्क्रिप्ट मोड में ऐड करें, स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग करेंगे जिसको हम बाद में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी कोडिंग आपको लिखना है, आप 50 लाइन का कोड लिखें, 500 लाइन का कोड लिखें, यू कैन राइट, आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल में उसको लिख सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में आप देखिए एट ए टाइम एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेटर वो कॉन्सेप्ट है जो लाइन बाय लाइन किसी चीज को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, हमें तो कंपाइल एंड कोडिंग चाहिए, जो भी हम कोड लिखे पूरा लिखे और उसके बाद वो एग्जीक्यूट। ठीक है, तो दिस इज द स्क्रिप्ट मोड एंड दिस इज द इंटरैक्टिव मोड ऑफ। तीसरा तरीका, ये जो तरीका है ये आपका सेकंड मोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपने एज अ बिगिनर क्या किया, एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड कर दिया। ठीक है, आप स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनाकोंडा नेविगेटर, मैडम, व्हाई वी आर यूजिंग एनाकोंडा नेविगेटर? वी कैन डू द वर्क विथ ऑनलाइन पाइथन एडिटर। See, not all classes, not as I told you, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पाइथन में ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ऑनलाइन पाइथन एडिटर जो होते हैं वो सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ वगैरह बनाना है तो मे बी कि वहाँ लाइब्रेरी आपको सपोर्ट ना करे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक फीचर्स के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप ऑनलाइन एडिटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको सारी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, और जब हमें सारी लाइब्रेरीज चाहिए तो हमें फिर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एडिटर चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जहां पर हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकें विदाउट एनी हर्डल। ओके, तो उसके लिए हमने एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड कर लिया। अब आप सिंपली अपनी प्रोग्रामिंग यहाँ पर करते जाइए, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको इसके अलावा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका अब मैं आपको बताती हूँ जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं कि पाइथन का इंडिविजुअल हमको मल्टीपल टूल्स नहीं चाहिए। आप python.org पे जाएं, आप गूगल पे जाएं और एनाकोंडा को हटा के यहाँ पर आप लिखे python.org, python.org।
python.org पे देखिए डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है, हमको सिर्फ पाइथन पे काम करना है, तो वेलकम टू python.org। python.org पे जाके आप पाइथन के डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाइथन के डिफरेंट, देखिए मेरा सिस्टम, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका सिस्टम जो गूगल है आपको सजेस्ट कर देता है कि कौन सा वर्जन आपको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। जैसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आई मीन टू से किसी का 32 बिट प्रोसेसर होगा, ठीक है, किसी का कोर i3 होगा, किसी का कोर i5 होगा, किसी का 64 बिट प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो आपके प्रोसेसर कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी रैम के हिसाब से आप उस तरीके का वर्जन डाउनलोड कर ले। यहाँ से ऑलरेडी आपको सिस्टम सजेस्ट कर देगा, जो यहाँ पर लिंक अवेलेबल रहेगी उसको आपको क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया, जब आप पाइथन डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पाइथन डाउनलोड होने के बाद, दिस इज द थर्ड वे, ओके। आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन, जिसको बोलते हैं हम कंसोल, ठीक है, दिस इज द कंसोल। आपको पाइथन डाउनलोड करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे सर्च बॉक्स पे पाइथन IDLE, पाइथन देखिए पाइथन IDLE, वेट अ मिनट। देखिए जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे मशीन पे पाइथन एनाकोंडा भी इंस्टॉल है, मेरी मशीन पे IDLE पाइथन 3.7 भी इंस्टॉल है, ठीक है। IDLE पे जैसे ही पाइथन आप इंस्टॉल कर लेंगे python.org से, तो आपका पाइथन आपको कौन किस पे क्लिक करना है, IDLE पाइथन 3.7, ठीक है। आइडियली पाइथन 3.7 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आई, कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आपके सामने ये विंडो आती है इट मींस आप यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड में वर्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशंस कर सकते हैं विदाउट सेविंग इट, ठीक है। ये विंडो जैसे ही आपके सामने आती है, आप यहाँ पर फाइल में जाके न्यू फाइल जैसे ही करेंगे, न्यू फाइल आपने किया तो देखिए ये आपके पास पाइथन एडिटर आ गया, ठीक है। पाइथन एडिटर आ गया। अब आप यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करना चाहते हैं आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, दिस इज द आउटपुट विंडो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ओके। आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा, वी विल अंडरस्टैंड, हम प्रिंट स्टेटमेंट का मीनिंग अभी जस्ट समझेंगे इस जस्ट सेशन के बाद, ओके। जो भी स्टेटमेंट आप इस विंडो में लिखेंगे, दिस इज योर एडिटर विंडो, ठीक है। एंड दिस इज जहां पर ये तीन सिंबल आ रहे हैं, तीन ग्रेटर देन सिंबल आ रहे हैं, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, मतलब ये आपके आउटपुट विंडो है, ठीक है। आपको आउटपुट विंडो में ही जाके यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे तो आपके इस तरीके की न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको जैसे ही फाइल ओपन करेंगे, आपको ध्यान पहले ये रखना है कि आप फाइल को पहले सेव करें, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने फाइल को सेव किया, कहीं पर भी आप सेव करें, बाय डिफॉल्ट इसका जो लोकेशन है विंडोज सिस्टम 32 में होगा। मैंने नाम दे दिया इसको demo.py, क्योंकि ये पाइथन की फाइल है तो हमको इसको क्या नाम देना पड़ेगा, .py एक्सटेंशन देना पड़ेगा, फाइल नेम अलॉन्ग विथ फाइल एक्सटेंशन py। हमने इसको सेव कर दिया, ओके। वी डोंट हैव अ परमिशन बिकॉज इट्स अ सिस्टम डायरेक्टरी, will store in a D drive. यूजर्स HP, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सेव कहाँ कर रहे हैं। मैंने अपने सी ड्राइव में यूजर्स में HP नाम का जो फोल्डर है वहां पर अपनी फाइल को सेव कर दिया, ओवरराइट कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ऑलरेडी डेमो नाम की कोई फाइल थी, ठीक है। अब ये फाइल जैसे ही सेव हो जाती है तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार में एक रन करके ऑप्शन है, आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल करेंगे। ये रन मॉड्यूल मैंने जैसे ही किया तो ये हमारा जो शेल मोड है, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो शेल मोड है, जिसको आप इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं, यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दिस इज अवर स्क्रिप्ट विंडो, जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, और यहाँ पर अगर हमें इंस्टेंट प्रोग्रामिंग करनी है तो इंस्टेंट प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटरैक्टिव, ओके। सो इट इज योर स्क्रिप्ट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इट इज योर आउटपुट विंडो, जहां पर आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा, ओके। तो दीज आर द 3 ways वेयर यू कैन परफॉर्म पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एनाकोंडा नेविगेटर। आप ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल
नेविगेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में अगर मुझे कोई भी कोड लिखना है, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट होता है, आपको कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कोई भी ये हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई भी स्टेटमेंट अगर आप प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। वेलकम टू पाइथन, ये आपने लिखा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। आपको उसको एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पर रन फाइल करने के लिए या तो आप F5 प्रेस करें या फिर डायरेक्टली इस पर क्लिक करें, यू विल गेट द इमीडिएट आउटपुट इन योर इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पर आपको इंटरैक्टिव मोड में ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब अगर आपको कुछ नेम है, जैसे आपका एक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू ओके, दिस इज माय नेम। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, अपने नाम को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अगर मैं अपने नाम को डिस्प्ले करवाती हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज था, डबल कोट्स में हमने लिखा दिस इज अ मैसेज। अब अगर मैंने लिखा नेम इक्वल टू माया राठौर, तो ये क्या है, यहाँ पर नेम एक वेरिएबल है, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो x इक्वल टू 100 लिखते हैं, है ना, हम x इक्वल टू 100 लिखते हैं, x इक्वल टू 200 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, 100.56 लिखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल वो चीज होती है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर नेम क्या है, मेरा एक वेरिएबल है जिसमें एक मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है, माई नेम इज द वैल्यू, माया राठौर यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवाया है। अब अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट करवाना है, किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट नेम। देखिए प्रिंट नेम मैंने जैसे लिखा, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए मुझे वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, आप अपनी आउटपुट विंडो में देख सकते हैं, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, दो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाई है, एक तो हमने मैसेज प्रिंट करवाया है डबल कोट्स में, और दूसरा हमने वेरिएबल प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एज इट इज आपका डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो मैंने आपसे कहा था कि पाइथन जो है वो डायनामिकली सपोर्टेड है। ठीक है, पाइथन जो है डायनामिकली सपोर्टेड है, मीन्स यहाँ पर मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि जो मेरा नेम है वो किस तरीके की वैल्यू, नेम जो है वो किस तरीके की वैल्यू है, ऑटोमेटिकली इसने डायनामिकली डिसाइड कर लिया कि नेम जो है वो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इट्स अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू। उसी तरीके से अगर मैं एज लेती हूँ, सभी जानते हैं एज फ्लोट भी हो सकती है और एज होल नंबर भी हो सकती है। मान लेते हैं किसी की एज 21.5, 21.6 या 21.5। ठीक है, अब यहाँ मैंने ये नहीं बताया कि जो हमारा एज है वो किस तरीके की वैल्यू लेगा, वेदर ये डेसिमल टाइप की वैल्यू लेगा या ये होल नंबर टाइप की वैल्यू लेगा। ठीक है, ये पाइथन खुद डायनामिक टाइम पे डिसाइड करता है कि ये किस तरीके की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे इसको भी अगर प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एज। एज अगर वेरिएबल है, वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं आप, तो कोई डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है। लेकिन अगर आप कोई मैसेज देते हैं, डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग ऑफ देते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखना है। ठीक है, देखिए आप सिंगल कोट्स में लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, हियर यू कैन सी, सो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स दोनों ही आप लगा सकते हैं। अगर आप मैसेज दे रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं, तो डायरेक्टली गिव द नेम ऑफ डबल कोट्स या डबल कोट्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये देखना है, हमने तो यहाँ दिया नहीं है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। देखिए डेटा अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले तो हम डेटा की बात करें, ये डेटा है, नेम इज अ डेटा, एज इज अ डेटा, ईमेल इज अ डेटा, मोबाइल नंबर इज अ डेटा। लेकिन हमने यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम जो डेटा ले रहे हैं वो किस तरह के टाइप, उसका टाइप क्या है। ठीक है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस, अगर C++ की बात करें हम, या हम जावा स्क्रिप्ट की बात, सॉरी डॉटनेट की बात करें, आप PHP की बात करें, तो वहां पर आपको क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि अगर आप नेम ले रहे हैं तो ये किस तरीके का है, कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, तो आपको इस तरीके से बताना पड़ता है। अगर आपने कहा कि हम एज ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एज डेसिमल टाइप का है, तो डेसिमल के लिए आपको फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पाइथन में डायरेक्टली सिर्फ डेटा लिखें, वेरिएबल लिखें, विदाउट ये बताए कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल को हमने इस तरीके से बता दिया कि नेम इक्वल
myra age equal to this and print age और print name, हमने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बहुत इजी तरह से देख लेते हैं हम। डायरेक्टली हम लोग कोर कंसेप्ट देखेंगे और देन फिर कुछ मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो पाइथन का ओवरव्यू मैम ने आपको दे दिया है। कैसे वर्क करना है, python.org से हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग सीधे कंसेप्ट पे आते हैं, सीधे प्रोग्रामिंग पार्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक पर। ठीक है, जुपिटर नोटबुक जो है वो पाइथन एडिटर है। ठीक है, इसमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, सभी टाइप की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ये काइंड ऑफ एक नोटबुक की तरह वर्क करता है। सो नोटबुक कैसा, लाइक हम लोग डायग्राम्स बना सकते हैं, हम लोग उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, हम लोग उसमें कोड के आउटपुट शो कर सकते हैं, सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ओके, सो हम वही चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। जब तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे, मतलब अगर तुम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करोगे, सो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना बिल्कुल ईजी है। तुम जैसा मैम ने आपको बता दिया कि एनाकोंडा नेविगेटर से आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, दैट इज एनाकोंडा नेविगेटर पर। ओके, वहां से जुपिटर आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ आउटपुट आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, ये आपकी स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे सारे फोल्डर्स आपके सिस्टम पे जो अवेलेबल है सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना के रखा है। हम लोग डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर चलते हैं। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट वाला सेशन अटेंड किया था उनको पता है ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। मशीन लर्निंग के लिए हमने एक पीडीएफ बना रखा है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बनाया है पाइथन कोर। ठीक है, तो हम लोग पाइथन कोर के कंसेप्ट देखते हैं, देन फिर हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, मुझे क्या करना है इस फोल्डर में, इस पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है। ओके, सो राइट हैंड साइड आपको ये न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है। ओके, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे पाइथन 3 आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जुपिटर नोटबुक बाय डिफॉल्ट पाइथन सपोर्ट करता है, इसलिए आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी वैसे तो। बट अगर जुपिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो खुद ही इंस्टॉल कर लेता है पाइथन को भी। ओके, सो पाइथन 3 का हमें ऑप्शन मिल रहा है। पाइथन 3 अभी लेटेस्ट वर्जन 3.9 3.10 चल रहा है। ओके, आप लोग 3.9 इंस्टॉल कर सकते हैं या 3.7 भी बेटर रहेगा। ओके, सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो ये मुझे एक नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। ओके, जब भी नई फाइल क्रिएट करेगा, सो इस पे हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, अपनी थ्योरी लिख सकते हैं, हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये पूरा पार्ट किस पे वर्क कर रहा है, एक ब्राउजर पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये मॉजिला फायरफॉक्स है मेरे पास। ओके, सो ये मॉजिला पे वर्क कर रहा है। ओके, पूरा पार्ट जो है। ठीक है, सो इस पे जाके हम लोग एक नई मतलब इस ब्राउजर पे हम लोग जो भी चीज होगी ये ब्राउजर पे वर्क करेगा। ओके, हमको अलग से इसको कहीं और एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ब्राउजर पे सारी चीजों पे वर्क कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग क्या करें यहाँ पर, ये एक नई फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। सबसे पहले हम पाइथन कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक रीनेम दे देता हूँ, पाइथन कोर। दैट्स इट, पाइथन कोर नाम दे देते हैं इसको फिलहाल के लिए। हम लोग वापस अपने फोल्डर में चल के देखते हैं। देखो यहाँ पे पाइथन कोर नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, देखना ध्यान से, इस पर्टिकुलर फाइल का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल का जो एक्सटेंशन है उसको देखो क्या है, वो एक्सटेंशन है .ipynb। ठीक है, ये एक्सटेंशन किसको बताता है, आई पाइथन नोटबुक। ठीक है, pynb इज पाइथन नोटबुक। ओके, ये नोटबुक जो होगा इसमें हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर्मल जो पाइथन एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा था .js था, जब CSS आप लोगों ने पढ़ा था .css था। ओके, HTML के लिए .html था। तो जिस टाइप की फाइल होती है उस टाइप का उससे एक्सटेंशन होता है। ठीक है, पाइथन के लिए .py होता है, लेकिन जुपिटर नोटबुक जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इसमें और भी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन होगा वो अलग होगा। दैट्स इट। ओके, चलो हम लोग आ जाते हैं अपनी कोडिंग पार्ट पर। हम लोग बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पर आते हैं, हम लोग 2-3 चीजें मैं और आपको बता देता हूँ इस पर्टिकुलर एडिटर के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेल को, जैसे ये जो इन का ऑप्शन दिख रहा है ये इंटरप्रेटर होता है। ओके, इंटरप्रेटर क्या होता है, जो इंटरप्रेट करता है हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ कोड सिस्टम की लैंग्वेज में। ओके, जैसे हम लोग जो भी कोड लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में लिखने वाले हैं। ओके, सिस्टम को इंग्लिश नहीं आती है, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो ये जो कोड मैं लिखूंगा वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा और सिस्टम समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो IN इज फॉर इंटरप्रेटर। ठीक है, तो वो इंटरप्रेट करने के लिए होता है।
ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ कोड जो मशीन को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे वो इंटरप्रेटर होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो। सो इस पर्टिकुलर सेल पे, ये पर्टिकुलर एक सेल है, इसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हम चाहें वैसा कोड लिख सकते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ऊपर इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर आ सकते हैं, दैट इज सेल। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा सेल टाइप। सेल किस किस टाइप के होते हैं? मेनली यहाँ पर दो टाइप है, एक कोड जिसमें हम लोग पाइथन का कोड लिखेंगे, और एक होगा मार्कडाउन सेल। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इस मार्कडाउन सेल से क्या होगा? इस मार्कडाउन सेल से मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ, अपनी थ्योरी लिख सकता हूँ। जैसे प्रैक्टिकल बुक होती है हमारे पास, नोटबुक जो आप लोगों की होती है, उस नोटबुक में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, राइट साइड हम लोग अपना थ्योरी पार्ट लिखते हैं, लेफ्ट साइड जो ब्लैंक पेज होता है उस पर हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं, और जो भी काम की चीजें होती है वो उसमें पेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक हैशटैग लगा रहा हूँ हेडिंग देने के लिए, एक स्पेस देके मैं हेडिंग दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन कोर के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वेरिएबल्स का पार्ट आपको सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं पाइथन में। ओके, चलो, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, जिस भी सेल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग नोट्स लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ में, आप चाहो जितने नोट्स लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं कि पाइथन में हम लोग एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। सिंपल है बहुत। वेरिएबल का नाम हमको हम वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी क्या ले रहा हूँ, ए। ओके, मैं इसमें 10 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 10 असाइन कर देंगे और दैट्स इट। मुझे इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं बताना पाइथन को कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था, तो जावास्क्रिप्ट जिन्होंने पढ़ी है उन्हें सबको पता है कि हम लोग वहां पे वैर यूज कर रहे थे। ठीक है, पाइथन में हमको ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम, उसमें कोई भी वैल्यू एक असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डायनामिक डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स को हम बाद में समझेंगे, बट पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और दैट्स इट। मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है? इसके आगे पैरेंथेसिस लगा होगा। ठीक है, तो जहां भी पैरेंथेसिस तुमको दिख जाए समझ लेना कि वो क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स जहां भी दिखें किसी भी वर्ड के आगे तो वो एक फंक्शन है। ओके, अगर मुझे किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्टली ए लिखूंगा। ओके, इस सेल को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लोगों को आउटपुट कहाँ शो होगा, इसी नोटबुक में होगा। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकल फाइल हम लोग यूज करते हो, प्रैक्टिकल फाइल में हम लोग क्या करते हैं, जो कोड होता है वो लिखते हैं राइट हैंड साइड, और उसका आउटपुट हम ब्लैंक पेज पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, वैसे ही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर जो भी आउटपुट होगा वो इसी पेज पर हमको दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम ये रन बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर पार्ट रन हो जाएगा। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, दैट इज 10। ओके, सिंपल। चलो, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया था, एक इंटीजर हमको दिख रहा है, 10 जो है वो एक इंटीजर है। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे टाइप के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10.5। ओके, सिंपल। मैं अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो प्रिंट b लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो या तो मैं रन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर एक शॉर्टकट भी है, शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर अगर आप प्रेस करोगे, ठीक है, नॉट एंटर, शिफ्ट एंटर। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे तो ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी सिलेक्टेड होगा। ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे 10.5 प्रिंट हो रहा है, जो भी बी की वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। ओके, आई बात समझ में? ऐसे अलग अलग टाइप का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हम सबको पता है अलग अलग टाइप का डेटा होता है, वीडियो फॉर्मेट में होता है, इमेजेस फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट होता है, मतलब नंबर फॉर्मेट में हो सकता है, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट को यहाँ पे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर नया वेरिएबल दिया सी, इसमें मैं कोई स्ट्रिंग देना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग जो होता है उसको हम सिंगल कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डबल कोड्स में कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, सिंगल कोड्स में कर सकते हैं या डबल कोड्स में। मैं डबल कोड्स में यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो एवरीवन, दैट्स इट। मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किस में असाइन कर दिया, सी में असाइन कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट सी, दैट्स इट। चलो, जैसा ऊपर वैल्यूज प्रिंट हो रही थी वैसे ही सी की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या है सी की वैल्यू, हेलो एवरीवन। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया, दैट इज हेलो एवरीवन। आई बात समझ में? ठीक है, सो ये इस तरह से वर्क करता है। ओके, तो इस टाइप से हम अलग अलग टाइप की जो डेटा होगा वो स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल में। ओके,
क्लियर? ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप का है, अगर मुझको उसका टाइप चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ एक सिंपल सी चीज लिख सकता हूँ। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन यहाँ पर यूज किया था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। ठीक है, क्या करें, क्योंकि हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हम उसको वापस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे सबसे पहले चेक करना है कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, जैसे मैं इसको कह रहा था कि ये इंटीजर टाइप का है, ये डेसिमल नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इंटरनली वो उसी को ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। टाइप भी एक फंक्शन होता है, ये इस तरह से वर्क करता है, देखो ध्यान से। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो बोर्ड मास रूल मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा हुआ है। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओके, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं मतलब सबसे अंदर वाले ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं, ये सभी ने हमने पढ़ा है। ओके, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये। ठीक है, ये सॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, ए का एक टाइप निकाल करके देगा। वो टाइप इंटरनली यहाँ आ चुका होगा और उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो बाहर वाला ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो वो प्रिंट कर देगा प्रिंट फंक्शन की वजह से। ओके, सो मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये मुझे आउटपुट क्या देता है। देखो ध्यान से, ये मुझे आउटपुट दे रहा है क्लास इंट। अभी ये जो क्लास कीवर्ड है इसको तुम साइड में रखो, इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ किस पे, इंट पे। ठीक है, इंट जो है वो बताता है कि ये जो वेरिएबल आपने यूज किया है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें और यूज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वापस सेम चीज लिखी 10.5। ओके, 10.5 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इस बी का टाइप कैसा है, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, फ्लोट। फ्लोट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, फ्लोट रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर्स। ओके, सो फ्लोट जो होगा वो डेसिमल, जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे उसको पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट नंबर्स कहा जाता है। ओके, क्लियर? वैसे ही हमारे पास एक और चीज है, दैट इज हमने जो हेलो एवरीवन लिखा था, हम यहाँ पे वापस लिख देते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन। ओके, अगर मैं इसका टाइप देखना चाह रहा हूँ तो वो क्या रहेगा, टाइप सी। ओके, चला के देखते हैं इसको, ये क्या आउटपुट दे रहा है, दिस इज फॉर एसटीआर। ये हमको आउटपुट दे रहा है एसटीआर। एसटीआर इज फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, एसटीआर किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो जितना भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, जितना भी टेक्स्ट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रिंग से। ठीक है, इंटरनली वो कैसे ट्रीट होता है, स्ट्रिंग टाइप में। ओके, क्लियर? सो डेटा जो होता है उसका अलग अलग टाइप होता है, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका होता है, उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। चलो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी भी चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन या प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के बारे में हम कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वर्ल्ड। ओके, या वर्ल्ड की जगह हम लोग ले लेते हैं इंदौर। ठीक है, इट विल बी बेटर। ओके, सो हेलो इंदौर, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है। प्रिंट फंक्शन हेलो जो है वो हेलो प्रिंट कर रहा है, और इंदौर जो है वो इंदौर प्रिंट कर रहा है। सिंपल। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट चलने के बाद क्या करता है, लाइन चेंज करता है। ठीक है, लाइन चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरनली देखो, यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ और लाइन चेंज होने के बाद, मतलब जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं नोटपैड फाइल में, वैसे यहाँ पे लाइन चेंज हो चुकी है। ठीक है, लाइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है कौन, स्लैश एन। ठीक है, व्हाट इज स्लैश एन, तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख लेते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन एन। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन एन क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ नहीं लिखते हुए कोडिंग पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो न्यू बैकवर्ड स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इंटरनली यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर आता है, मतलब एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और लाइन भी चेंज कर देता है। ठीक है, क्लियर? मुझे करना है यहाँ पर मुझे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है और लाइन चेंज करवानी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंदौर। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता, मुझे यहाँ पे लाइन चेंज करनी है। क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा हेलो बैकवर्ड स्लैश एन और मैंने लिखा इंदौर। ओके, ये बैकवर्ड स्लैश एन कैसे ट्रीट होगा, ये ट्रीट होगा जैसे इंटरप्रेटर को ये पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा वो उसकी लाइन चेंज कर देगा।
मतलब वो कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन पर लेकर के आ जाएगा। देखते हैं चला के इसको, देखो पहले जैसा प्रिंट स्टेटमेंट, दो प्रिंट स्टेटमेंट जैसा आउटपुट दे रहे थे वैसा स्लैश एन दे रहा है। ओके, तो इंटरनली क्या होता है, ये स्लैश एन वर्क करता है। ओके, क्लियर, आई बात समझ में। सो ये प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से वर्क करेगा। एक और सिंपल सा पार्ट देख लेते हैं, दैट इज हमारे पास है बैकवर्ड स्लैश टी। बैकवर्ड स्लैश टी कैसे वर्क करेगा, सो बैकवर्ड स्लैश टी इस तरह से वर्क करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टैब। ठीक है, सो टैब जो होता है वो सभी ने यूज किया हुआ है। एक कीबोर्ड पर टैब बटन होता है जो स्पेस दे देता है काफी सारी। ठीक है, तो टोटल कितनी स्पेसेस देता है ये 8। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देता है। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। अगर मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट पर लिखा हेलो बैकवर्ड स्लैश टी एंड इंदौर, ठीक है, तो क्या होगा, ये 8 कैरेक्टर्स की स्पेस देगा। देखो ध्यान से, बीच में कितने स्पेसेस आ रही हैं, 8 कैरेक्टर्स की स्पेस आ रही है। आई बात समझ में। तो स्लैश एन और स्लैश टी इस तरह से वर्क करता है। प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, और ये इस तरह से वर्क करेगा। चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यूजर इनपुट पे कैसे वर्क करेंगे, यूजर इनपुट पे वर्क करने के लिए हम एक सिंपल सा फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज इनपुट। ओके, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। ओके, चलो सो क्या करें हम लोग यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन कैसे पता, इसके आगे पैरेंथेसिस लगाए, दैट मींस ये एक फंक्शन है। ओके, चलो जो भी ये फंक्शन होगा उसको, उसके जो भी वैल्यू यूजर देगा, ठीक है, यूजर से हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं तो यूजर कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही, उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ओके, कैसे करवाएंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिख दी दिस। ओके, चलो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, दैट इज ए, और कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू यहाँ से यूजर इनपुट देगा उसको एज इट इज हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो ध्यान से ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर मुझे एक इनपुट पार्ट देता है, देखो यहाँ पे एक स्टार शो हो रहा है, स्टार इज फॉर ये पर्टिकुलर सेल अभी रनिंग में है। ओके, ये रन कर रही है अभी, इसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है। ओके, चलो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये जो पर्टिकुलर हिमांशु पार्ट है वो किस में असाइन हो जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में, जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, चला के देखेंगे इसको, देखो वापस से प्रिंट कर दिया। ऊपर वाला जो हिमांशु है वो किसके लिए, वो इनपुट फंक्शन लेकर के आया है जो ए में असाइन हुआ है, और नीचे वाला जो हिमांशु है उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। चलो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं और। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में डायरेक्टली हम यूजर को इनपुट देने के लिए बॉक्स नहीं देंगे, हम उसको एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाएंगे ताकि वो एक प्रॉपर वैल्यू एंटर करे। ठीक है, उसको पता चलना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं। ओके ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में एक सिंपल सा पार्ट लिख लेते हैं। मैंने लिखा एंटर योर नेम। ओके, सिंपल, मैंने क्या लिखा है, एंटर योर नेम। जो भी इनपुट फंक्शन में हम लोग लिखेंगे, तो बोल्ड मास रूल सभी को पता है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये हमको आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगी। जब ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी, उसके आगे हमारा इनपुट फंक्शन वर्क करेगा जैसे ऊपर वाला पार्ट कर रहा था, और जैसे ही यूजर एक इनपुट दे देता है तो वो पार्ट किसमें असाइन हो जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में, जिसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। हम लोग चाहे तो एक मैसेज के साथ भी प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग नाम प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो मुझे एक मैसेज दे रहा है कि एंटर योर नेम, पहले ऐसा मैसेज नहीं आ रहा था। ओके, चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने अपना नाम लिखा वापस से। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये जो नाम होगा वो किसमें असाइन हो जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में, और वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो इस तरह से क्या वर्क करता है, इनपुट फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। ओके, सो इस तरह से हम यूजर से एक वैल्यू ले सकते हैं। ओके, चलो हम एक सिंपल सा कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या कोड है, जैसे हम एक दो वैल्यूज यूजर से लेते हैं और उसका एडिशन प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जो होता है वो किसके लिए वर्क करता है, मुझे एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कास्टिंग वर्ड सभी को पता है, जैसे मूवीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्टर होता है, उसको कास्ट किया जाता है किसी रोल में, सच में वो उस पर्टिकुलर रोल का पार्ट होता है क्या, सच में वो सुपरमैन होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको कास्ट किया जाता है सुपरमैन के रोल के लिए। ओके, सो वही चीज यहाँ पर होगी। अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी दूसरे टाइप में। अगर मुझे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का है
तो मैं उसको फ्लोट में कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एक फ्लोट टाइप का मैं वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज 10.5। सिंपल। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस टाइप में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में। सबसे पहले तो मैं इसका टाइप प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ, दैट इज दिस। ओके, सो ये टाइप क्या देगा, हम सबको पता है ये फ्लोट टाइप देगा। ओके, दिस विल एंटर फ्लोट टाइप, ठीक है। क्लियर। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ठीक है। मुझे इसकी टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कास्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर टाइप में। कैसे करेंगे हम लोग, सो हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, मैं इस वेरिएबल में क्या असाइन कर रहा हूँ, ए को असाइन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस ए को कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कास्ट करना है इंटीजर में। तो डायरेक्टली हमारे पास जिस भी टाइप में तुम कन्वर्ट करना चाह रहे हो वैसे डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल है। अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट टाइप का हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है। ओके, तो ए को क्या करेगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और बी में असाइन कर देगा। सिंपल। हम इसको प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले तो हम बी को प्रिंट करवाते हैं और हम एक और चीज प्रिंट करवाते हैं कि बी का टाइप क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ बी क्या रहेगा, ओके, टाइप कास्ट होने के बाद। ओके, क्लियर। चला के देखें इसको। जब हम इसको चलाएंगे, देखो सबसे पहले ए का आउटपुट क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, उसका टाइप कैसा है, फ्लोट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पर ए को प्रिंट करवा दिया, हमको बी को करवाना है। ओके, चला के देखते हैं। ओके, बी को प्रिंट करवाया, सो ये आउटपुट क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, ठीक है। तो उस फ्लोट नंबर को उसने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और जब लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप देख रहे हैं उसका, तो क्या बता रहा है, इंटीजर बता रहा है। आई बात समझ में। सो ये इस तरह से वर्क करता है। हम लोग किसी भी नंबर की टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल होता ऐसा कुछ, ठीक है, ये डबल कोट्स में लिखा है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग है, तो हम लोग वापस टाइप फंक्शन से देख सकते हैं कि ये वो स्ट्रिंग है कि नहीं। ओके, सिंपल। और हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हमें इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो मैं एंड फंक्शन यूज करूंगा और मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, ए पास कर सकता हूँ। हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कि बी की वैल्यू कितनी होगी, और हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कि बी का टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ बी। ओके, सो ये कन्वर्ट कर देगा एक नंबर को दूसरे नंबर में। ओके, सो देखो ध्यान से, पहले था ये स्ट्रिंग पार्ट में, जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो 10 बन गया, ऑब्वियसली 10 ही था वो तो। लेकिन टाइप अगर हम उसको देखें बी का, तो वो क्या है, इंटीजर है, तो हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। आई गेस ये चीज समझ में आ गई होगी। हम किसी नंबर को कास्ट कर सकते हैं दूसरे टाइप में। ओके, क्लियर। इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ओके, श्योर। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हम एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है, ताकि हमको सारी चीजें क्लियर हो। सो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, राइट प्रोग्राम टू एंटर टू numbers from user and print addition of them। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर्स यूजर से लेने हैं और उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये सिर्फ ये जो दो स्टार मैंने लगाए हैं सिर्फ बोल्ड लेटर्स के लिए लगाए हैं। सो तुम ये जुपिटर की प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके ओके, सो हमें यहाँ पर दो यूजर से वैल्यूज लेनी है, दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इन दोनों का एडिशन प्रिंट करवाना है। ठीक है, करवा के देखते हैं। मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके अंदर एक मैसेज दे देता है क्या, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू इनपुट, हम सेकंड नंबर यहाँ दे देते हैं, दैट इज एंटर सेकंड नंबर। ओके, सिंपल। दोनों मैसेज दे दिए। पहला इनपुट क्या करेगा, जो भी वैल्यू यूजर देगा वो ए वेरिएबल में आ जाएगी, और दूसरा इनपुट क्या करेगा, जो भी वेरिएबल देगा, जो भी वैल्यू देगा वो बी वेरिएबल में आ जाएगी। सिंपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी दोनों का एडिशन होगा, मतलब जो भी दोनों वैल्यूज होंगी उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा इस तरह से। तो राइट हैंड साइड जो भी पार्ट लिखा होगा वो दोनों ऐड होंगे और सी में असाइन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक सिंपल सा पार्ट, दैट इज सी। ठीक है, तो दोनों का एडिशन सी में प्रिंट होना चाहिए। हम इसको चला के देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर करने का कह रहा है, मैं इसमें 10 एंटर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में यहाँ पे क्या एंटर कर रहा हूँ, 20। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा 20 बी में असाइन होगा, दोनों का एडिशन सी में आएगा और सी प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1020। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ठीक है, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो हमेशा किस फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करके देखूं कि
इसका टाइप क्या है, किसका, ए का, ठीक है, ए का यहाँ पर टाइप क्या है, तो वो क्या बताएगा, str, ठीक है। क्यों बता रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी यूजर से लेंगे वो किस फॉर्मेट में आएगा, इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, ठीक है। तो हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर हमको एडिशन करना है तो दो स्ट्रिंग्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो वो ऐसा दिखता है, ओके, आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप कास्टिंग करेंगे, जो अभी अभी हमने देखा, ठीक है। स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होगी तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में, ताकि वो एडिशन कर पाए, ओके। चलो मैं सेम पार्ट लिख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक ब्रैकेट्स, और इसके आगे मैं सिंपल सा पार्ट लिख रहा हूँ, एंड, ठीक है। तो याद करो प्रीवियस पार्ट जिसमें हमने क्या किया था, इनपुट, ये पर्टिकुलर पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करेगा कि बोर्ड मास रूल के हिसाब से अंदर वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होता है, ये मैसेज आएगा, यूजर एक इनपुट देगा, जो भी इनपुट होगा, फॉर एग्जांपल 10, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। इस बाहर वाले ब्रैकेट की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर फंक्शन की वजह से इंटीजर में, और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में असाइन हो जाएगा। सेम चीज हमें किसके साथ करनी है, सेम चीज हमें करनी है किसके साथ, बी के साथ, ओके। तो इसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इस बार हम इसको चला के देखेंगे क्या, चलो चला के देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 10 पास किया, मैंने यहाँ पे 20 पास किया, ठीक है, दोनों वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट होगी। इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, 30, ओके। तो हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, काफी इजी है, ओके। दो नंबर्स को ऐड करके हम लोग इस तरह से प्रिंट करवा, क्लियर। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये इस तरह से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। इससे हम बस इतना समझे कि जो भी वैल्यू हम यूजर से लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, ओके। जो भी वैल्यू हम लोग यूजर से लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, बस हमने उसको किस में किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है, दैट्स इट, ओके। सो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कोई कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। कंडीशन के बेसिस पे ही हम कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग कोड डायरेक्टली लिख रहे हैं तो ये पूरा पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है और हमको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं ये पर्टिकुलर लाइन तभी चले जब कोई कंडीशन ट्रू हो, ओके। सो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपल सा पार्ट यूज कर सकते हैं, इफ एंड एल्स, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं इफ एंड एल्स, ओके। इफ एंड एल्स कैसे वर्क करता है तो वो पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल यहाँ पर बनाया, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है। लेकिन मैं किस पर्टिकुलर पार्ट में देना चाह रहा हूँ इसको, इफ एंड एल्स में, ओके। मैं कंडीशन के बेसिस पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा इफ, और हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन जो होगी वो किसके बेसिस पे वर्क करेगी। सो मैं तुम्हें एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन के पहले एक छोटा सा पार्ट और देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर है, दैट इज ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखे थे, ओके। सेम वर्क करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। डबल इक्वल्स टू, ये सब कैसे वर्क करते हैं, वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखे थे, ओके। इसको हम नाम भी दे देते हैं, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे दिखते हैं, इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। हम लोग इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स से हमको आउटपुट जनरेट करके देंगे। अगर मैंने सिंपल सी लाइन लिखी है 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है, हाँ होता है। तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये मुझे देगा ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। चला करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, दोनों साइड जो वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करता है। क्या 10 इक्वल्स टू 10 होता है, हाँ होता है। तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा, ओके। इसको एक और तरह से हम लोग चला के देखते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 इज इक्वल्स टू 11, क्या 10 11 के इक्वल होता है, क्या नहीं होता। तो मुझे आउटपुट क्या देगा, फॉल्स, ओके। सो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। इन्हीं का हम लोग यूज करने वाले हैं अपने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो ट्रू या फॉल्स में हम आउटपुट देते हैं, और इन्हीं का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ओके। चलो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें कंडीशन देते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे कंडीशन उससे पूछ रहे थे कि 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्या, वैसे ही कंडीशन हम लोग यहाँ देते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा 10 इज ग्रेटर देन
5। ओके, हमने यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन दी है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये कंडीशन जब ट्रू हो तभी इसके अंदर जो पार्ट हो वो एग्जीक्यूट हो। इफ स्टेटमेंट जो होता है वो काइंड ऑफ एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर मैं कितना भी कोड लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कॉलन लगाना है कंडीशन देने के बाद, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। देखो ध्यान से, जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे क्या कर रहा है, ये इंडेंटेशन दे रहा है। दिस इज व्हाट, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हम लोगों ने सभी ने देखा हुआ है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो स्टार्टिंग में छोटा सा गैप देते हैं इंडेंटेशन का। ओके, उसके बाद हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी इंडेंटेशन वही पार्ट है जो हमने वहां देखा था। ओके, सो ये इंडेंटेशन से क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो भी इसके अंदर पार्ट लिखेंगे हम लोग, जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। क्योंकि इफ जो है वो एक बॉक्स की तरह वर्क कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो भी हम लोग इसके अंदर कोड लिखेंगे तो इसके ये इंडेंटेशन दे के लिखेंगे। ओके, अगर मैं इंडेंटेशन के बाहर यहाँ पे कोड लिखता हूँ तो वो इफ का पार्ट नहीं होगा। ओके, चलो, ये इंडेंटेशन जो होगा मिनिमम 4 स्पेसेस का हम लोग देते हैं। ओके, सो ये टैब प्रेस करोगे तो उससे भी आ जाएगा, या फिर यहाँ से एंटर प्रेस करोगे कॉर्नर लगा के तो खुद ही अपने आप इंडेंटेशन दे देगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सा पार्ट इसके अंदर लिख रहा हूँ, दैट इज हेलो। ठीक है, इसके अंदर हम एक और लाइन लिख देते हैं, हेलो एंड हाय। ओके, 2 स्टेटमेंट मैंने इसमें लिख दिए। ओके, क्लियर। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कैसे वर्क करेगा, 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्या? ठीक है, काम करते हैं, इस स्टेटमेंट को चला के देखते हैं। सो 10 इज ग्रेटर देन 5 होता है क्या? हाँ होता है, कंडीशन ट्रू। अगर इस स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो तुमने पार्ट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। ये कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे ये मुझे ट्रू आउटपुट दे रहा था। देखो ध्यान से, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू आउटपुट देगा। अगर इंटरनली यहाँ पर ट्रू आया है, दैट मीन्स वो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा बॉक्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा? इफ बॉक्स का। ओके, अगर वो ट्रू होती है कंडीशन तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको चला के देखता हूँ। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो आउटपुट दे रहा है हेलो एंड हाय। ठीक है, मैंने सेम चीज लिखी, मैंने लिखा इफ, मैंने यहाँ पे लिखा 10 इज लेस देन 5। ठीक है, क्या 10 इज लेस देन 5 होता है क्या? अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हेलो एंड प्रिंट कर देते हैं हाय। ओके, दोनों चीजें प्रिंट कर दी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ 10 इज लेस देन 5 होता है क्या? नहीं होता। तो ये रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स हम लोग इस बॉक्स के अंदर नहीं आ पाएंगे और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ के साथ एक और पार्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज एल्स। ओके, सो हम लोग वही चीज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10 इज लेस देन 5। अगर ऐसा है तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं क्या? इसके अंदर हम सिंपल सा पार्ट प्रिंट कर देते हैं, सॉरी, इंदौर। और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं एक और चीज, इंदौर एंड हेलो। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ये बॉक्स मेरा यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, सो इंडेंटेशन हटा के मैं यहाँ पर किसके पैरेलल में, इफ के पैरेलल में एक सिंपल सी लाइन लिखूंगा, दैट इज एल्स। ठीक है, देखो इसका कलर चेंज हो गया। एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं जैसा इस पर्टिकुलर पार्ट में दे रहे हैं। ये किसका ऑल्टरनेट है? ये इफ का ऑल्टरनेट है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉलन लगाएंगे और इसके अंदर वाला पार्ट लिखेंगे। देखो यहाँ पे अपने आप इंडेंटेशन आ गया। ठीक है, क्लियर। मैं एक सिंपल सा पार्ट इसमें लिख रहा हूँ हेलो, और एक और स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं गोवा। ओके, क्लियर। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला पार्ट चलेगा, मतलब ये बॉक्स एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जंप करेगा सीधे एल्स पार्ट पर और एल्स पार्ट का बॉक्स एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी इस कंडीशन की वैल्यू क्या है? 10 इज लेस देन 5 होता है क्या? नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होगा तो वो सीधे कहाँ जंप करेगा? एल्स पार्ट पर, और क्या प्रिंट कर देगा? ये पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा। चला के देखेगा इसको, देखो क्या आउटपुट आया है, हेलो गोवा। ठीक है, तो इफ एंड एल्स दोनों में से कोई भी एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट चलता है, और एल्स की सॉरी इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एफ पार्ट चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर एल्स चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करके वापस प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम एक सिंपल चीज कर देते हैं 15। क्या 10 इज लेस देन 15 होता है? हाँ होता है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो इंदौर हेलो प्रिंट होना चाहिए। एल्स पार्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, चला कर देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है, हेलो, सॉरी इंदौर हेलो। ओके, तो ये जो पार्ट है वो किसके लिए होता है? इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के लिए होता है। ओके, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में एक सिंपल सा पार्ट देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमने एक कंडीशन दी है, हो सकता है यहाँ पर और भी ज्यादा कंडीशन हो। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक 3 नंबर्स लेते हैं 1 2 3।
यूजर से हम इनपुट लेंगे 1 2 3 का और प्रिंट करवा के देखेंगे उसका कैरेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख देता हूँ, दैट इज दिस, और मैं लिख रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स कैरेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और उसका कैरेक्टर फॉर्मेट प्रिंट करना है। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे सिंपल सा ये समझ में आता है, अगर यूजर ने 1 बोला है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। अगर यूजर ने 2 बोला है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, TWO 2 प्रिंट होना चाहिए। ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल सी चीज हम लोग कर सकते हैं इफ एल्स की हेल्प से, ओके। सबसे पहले मैं n नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है, मैंने लिखा एंटर अ नंबर, ओके, क्लियर, सिंपल सा पार्ट। इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे क्या करना रहेगा, हमने एक चीज अभी समझी, जो भी हम यूजर से वैल्यू लेते हैं वो किस फॉर्मेट में आती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्योंकि मैं नंबर ले रहा हूँ तो वो इंटीजर होना चाहिए, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके, सिंपल। मुझे क्या करना है, इसके सिंपल कंपैरिजन करना है। मुझे चेक करना है कि ये जो n है क्या वो 1 है। अगर वो 1 होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम उस बॉक्स के अंदर प्रिंट कर देंगे 1। अगर वो 2 होगा तो 2 प्रिंट कर देंगे, 3 होगा तो 3 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हमको मल्टीपल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने देखा कि हम एक कंडीशन मैक्सिमम यहाँ पर दे सकते हैं और एल्स पार्ट में दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशंस बढ़ानी है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 3 कंडीशंस देने वाला हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और पार्ट लिख देता हूँ। अगर किसी ने 3 एंटर किया तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 3, सिंपल। और अगर ने किसी और नंबर एडिट किया, मतलब किसी ने अदर नंबर्स एंटर कर दिए 0 या 5 7 8, ठीक है, इस टाइप से नंबर्स ऐड कर दिए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड नंबर, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए, ओके, क्लियर। सो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस n को हम कंपेयर करेंगे किससे, हम इस n को कंपेयर करेंगे 1 से, ठीक है। सही स्टेटमेंट लिखा है क्या, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल सा पार्ट प्रिंट कर देंगे, दैट इज 1, ओके, सिंपल। चलो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दूसरी कंडीशंस भी दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि एक कंडीशन के अलावा हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, एल्स पार्ट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस कितनी दे रहे हैं हम लोग, 3 कंडीशंस दे रहे हैं, ओके। तीनों कंडीशंस के लिए हम लोग अगर कंडीशंस बढ़ानी है तो यहाँ पे एल यूज करते हैं। देखो कलर चेंज हो गया, एल इज फॉर एल्स इफ। एल्स इफ मतलब कि वापस से हम लोग ऐसी कंडीशन देना चाह रहे हैं और वो कंडीशन के लिए हम लोग एल्स इफ लिख रहे हैं। अगर ये जो एन होता है ये 1 नहीं है तो हम क्या कंडीशन दूसरी चेक करेंगे, क्या ये n 2 है। अगर ये 2 है तो क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग, सिंपल सा पार्ट, दैट इज TWO2, ओके। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्स पार्ट लिखा, या हमारे पास एक और कंडीशन बची है तो हम लोग एलएफ लिखेंगे। एलएफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन देंगे। मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू 3। अगर n 3 के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए 3, सिंपल। तीनों कंडीशन हमने दे दी, ओके। लास्ट कंडीशन हमारी बची, अगर ये तीनों ही सही नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि अदर कोई नंबर एंटर कर देता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड नंबर। यहाँ पे मैं लास्ट पार्ट दे सकता हूँ एल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एल्स लिख सकते हैं, ओके। क्या करें, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड नंबर, ओके, सिंपल। चला करके देखते हैं इस पूरे पार्ट को, ओके। सो यूजर से इनपुट आएगा, एन में स्टोर होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू जो भी हो सकती है, ठीक है, वो इन तीनों कंडीशन से कंपेयर होगी, ठीक है। एक चीज समझने की ये है कि इन सभी सेक्शंस में से कोई भी एक सेक्शन रन होगा, सारे एक साथ नहीं होंगे, कोई भी 2 नहीं होंगे, सिर्फ एक सेक्शन रन होगा। चला करके देखते हैं, यूजर्स ने इनपुट दिया, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1, क्या प्रिंट हुआ, देखो 1 प्रिंट हो गया, क्या बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। कैरेक्टर फॉर्मेट में करना था, 2 एंटर करते हैं, 2 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 3 पास करते हैं, क्या प्रिंट कर रहा है, 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, किसी ने दे दिया 0, ठीक है, 0 एंटर करेंगे तो तीनों कंडीशन ट्रू होगी क्या, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, इसको चला करके देखते हैं क्या बोल रहा है, इनवैलिड नंबर, ओके। तो जो हम करना चाह रहे थे वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, ओके। सो इस तरह से कौन वर्क करता है, इस तरह से वर्क करते हैं हमारे इफ एंड एल्स, ओके। इफ एंड एल्स इस तरह से वर्क करते हैं, ओके, क्लियर। चलो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट से हमारे दैट इज एक लिस्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एक लिस्ट किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। जितने भी टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना ये चीज। तो लिस्ट कैसे वर्क करती है पाइथन में, लिस्ट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ,
ए इज इक्वल्स टू 10 असाइन कर सकता हूँ, ठीक है, या ए इज इक्वल्स टू किसी का नाम एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे करना है तुम सभी का, सभी स्टूडेंट्स का नाम एंटर करना है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 स्टूडेंट्स का नाम एंटर करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मैं अलग अलग वेरिएबल के नाम लूंगा। अब मुझे बताओ एज ए डेवलपर अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हें वेरिएबल्स के नाम याद नहीं रहेंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, बहुत सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर करनी है, तो मैं लिस्ट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लिस्ट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ओके। चलो सो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट रिप्रेजेंट करने के तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें एंटर करना चाह रहा हूँ 5, ओके। दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ पे क्या देना चाह रहा हूँ, 7, देन 8, देन 10, ठीक है। इस टाइप से मैंने कुछ एलिमेंट्स इसमें एंटर कर दिए, ओके, क्लियर, ठीक है। कॉमा से मैं सेपरेट कर सकता हूँ। क्या इसमें दूसरा किसी टाइप का एलिमेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने इसमें क्या रख दिया, इंदौर रख दिया, एक स्ट्रिंग है जो कि, ओके। फिर मैंने क्या रख दिया, इसमें मैंने रख दिया गोवा, ओके, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स इसमें रख दिए। अगर मैं सिंपल सा एक पार्ट लिखूं दैट इज एन, तो मैं इस पूरे पार्ट को प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें कितने भी टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा इसको चला के देखते हैं। देखो ध्यान से, ये मुझे आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, ओके। चलो हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग अगर इंडेक्सेस के बेसिस पे, जैसे अब मुझे इस पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे जाना है, मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, क्या कर सकते हैं। तो इमेजिन करो इंटरनली यहाँ पर क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, तो हम एड्रेस के थ्रू उस घर तक जा सकते हैं। वैसे ही हम लोग इंडेक्स के थ्रू इस एलिमेंट तक जा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट तक जा सकते हैं, ओके। तो पहला इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ओके। दूसरा इंडेक्स 1 पर, तीसरा 2 पर, चौथा 3 पर, ठीक है। आई बात समझ में, इस टाइप से सबके इंडेक्सेस होंगे, क्लियर। सो इंटरनली इस तरह से वर्क करें। अगर मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखी हुई किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा n, मैं इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या पास कर सकता हूँ, इंडेक्स पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 0 पास करता हूँ, सो चला करके देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। 0th इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, तो 5 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ओके। चलो अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंदौर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इंदौर का इंडेक्स क्या है, देखो इंटरनली 0 से स्टार्ट हुआ तो काउंट भी कर सकते हैं हम लोग, 4 है इसका इंडेक्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के क्या लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट देगा, इंदौर देगा क्या, हाँ, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्क करेगा, ओके। चलो सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे लगाएं हम लोग फंक्शन, जैसे मुझे चेक करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, मैं इसमें एक सिंपल सी लाइन लिख देता हूँ, लिस्ट फंक्शंस, ओके। लिस्ट फंक्शंस कैसे वर्क करेंगे, सो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसी लिस्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम लिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और इस पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। या छोटा सा चेंज कर देते हैं इसमें, ये स्ट्रिंग वैल्यूज में हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ओके। सो मैंने इसमें कुछ और एलिमेंट्स रख दिए, ओके, सिंपल। चलो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एक और मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 30, ठीक है, दैट्स इट। चलो इसके अंदर हम लोग क्या करें, डायरेक्टली हमारे पास एक फंक्शन होता है len, देखो कलर चेंज हो गया इसका। len फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने हैं वो रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 5, ओके। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5। तो बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट्स अंदर वाले सबसे पहले सॉल्व होते हैं। तो इंटरनली यहाँ पे लिस्ट रखी होगी पूरी की पूरी, ये उसको काउंट करेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ n इज 5। 5 प्रिंट के अंदर पास करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। कई बात समझ में। तो प्रिंट लेंथ किस तरह से वर्क करता है, इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है, ठीक है, काफी इजी है। मैं इसमें n पास करूंगा, इन सारे एलिमेंट्स में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा दैट इज 30 प्रिंट हो जाएगा, ओके। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट के लिए min फंक्शन, ओके। min फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, 7, ओके। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी का सम भी कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली हमारे पास फंक्शन है दैट इज सम फंक्शन, ओके। मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, n पास करूंगा, ये मुझे सम कैलकुलेट करके दे देगा, ओके। क्लियर ये चीज। तो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो हम लिस्ट को जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे सबका सम आ जाएगा, कितना आया, 66। हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ओके, क्लियर। चलो तो ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। सो लिस्ट जो है वो इस तरह से वर्क करता है। अब इस पे हम लोग और चीजें क्या कर सकते हैं, हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। जैसे
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। ओके, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, जैसे लिस्ट एक टाइप है वैसे स्ट्रिंग भी एक टाइप है। अगर मुझे टेक्स्ट पे वर्क करना है तो मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा, हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं str जो पार्ट था। ओके, तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होगी, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू इंदौर। ओके, सिंपल, डबल कोट्स में हमने लिख दिया इंदौर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट ए, अगर मैं चलाता हूँ इसको तो इस तरह से आउटपुट आएगा। ओके, ये हमें पता है। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो इस तरह से वर्क करेगा। इसका टाइप भी अगर हम चेक करें, सो इसका टाइप भी क्या आएगा, टाइप इज str। ठीक है, मैं a पास कर देता हूँ तो टाइप इज str, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जैसे लिस्ट में काफी सारे एलिमेंट्स थे वैसे ही स्ट्रिंग में भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे इसके इंडेक्सेस होंगे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से इंडेक्सेस पे वर्क कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, क्या ए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करना होता है एक इंडेक्स पे रखा हुआ तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से लगाते हैं सभी में। ठीक है, लिस्ट में भी यही किया था और स्ट्रिंग में भी यही करेंगे। अगर मैं a ऑफ 0 लिखूं, क्या प्रिंट होना चाहिए, कैपिटल आई। देखो कैपिटल आई आ गया क्या। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स पर हमको जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो a ऑफ 4 पे क्या रखा हुआ है, a ऑफ 4 पे r रखा हुआ है, स्मॉल r। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्मॉल r प्रिंट हो जाएगा। ओके, सिंपल। चलो, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस पे वही सेम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फंक्शंस, हम इसमें जो लिस्ट फंक्शन यूज किए थे वैसे हमने यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं। मैंने लिखा स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, कैसे वर्क करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, सॉरी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर वापस से s नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें मैं इंदौर लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने इसमें लिखा प्रिंट और मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में पास कर रहा हूँ len ऑफ s। ठीक है, लेंथ ऑफ s क्या रहेगा, लेंथ ऑफ s कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 6। ओके, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 6। ओके, क्लियर। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इन सब में से। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, तो चला के देखते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है r। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि r क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं सिंपल सा कंसेप्ट तुम्हें बताता हूँ। कंसेप्ट है आस्की कोड्स का। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा आस्की कोड्स। ठीक है, आस्की कोड्स क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इन कोड्स का यूज करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, जितने भी कीबोर्ड पे कीज हैं, ठीक है, सबको इंटरनली एक नंबर दिया हुआ है। मुझे बताओ, अगर मुझे, मेरे पास 10 है फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 है, तो मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके किसको दे सकता हूँ, जैसे बाइनरी अगर तुम बोलो तो 10 का बाइनरी होता है 1010। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट का बात करूं तो क्या होगा, ये बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमको कहूँ कि कैपिटल ए का बाइनरी निकालो तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। तो आस्की कोड इसी के लिए है, कीबोर्ड्स पे जितनी भी कीज हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो गए, स्पेस, बैकस्लैश, बैकस्पेस। ठीक है, नंबर्स हैं जितने जितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर का साइन, सारी चीजें, सभी को इंटरनली क्या है, एक आस्की कोड अवेलेबल है। आस्की कोड उनको दिया गया है। ठीक है, जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, 65 इंटरनली। कैपिटल बी का कितना होता है, कैपिटल बी का होता है 66। ऐसे तुम काउंट करते जाओ तो जेड का कितना होगा, जेड का होगा 90। ओके, क्लियर। इस टाइप से आस्की कोड्स गिवन है। ओके, अगर मैं बात करूं स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए का आस्की कोड कितना रहेगा, स्मॉल ए का आस्की कोड है 97। ओके, स्मॉल जेड की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल जेड का आस्की कोड कितना है, स्मॉल जेड का आस्की कोड है 122। ठीक है, तो इस टाइप से आस्की कोड गिवन है। अब सोच के देखो, मुझे निकालना है इन सभी में से मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम कौन होगा इन सब में, ऑब्वियसली स्मॉल जेड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो स्मॉल कैरेक्टर्स की रेंज है वो 97 से 122 के बीच में। इसलिए अगर मैं मैक्सिमम ऑफ एस निकालूं तो इनमें से सबसे स्मॉल कैरेक्टर्स कौन से, एन से ई तक। अब इन एन से ई तक में भी आर जो होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे करीब आएगा इसके। ठीक है, आर सबसे बाद में आता है सभी कैरेक्टर्स में, इसलिए वो क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट लिखूं, मैंने लिखा प्रिंट मिनिमम ऑफ एस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इंदौर में मिनिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल की रेंज कितनी है, 65 से 90 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो कैपिटल आई आना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। सो ये इस तरह से वर्क करता है। तो हमें सिर्फ इसकी रेंज का ध्यान रखना है। 65 जो होता है वो कैपिटल ए का होता है, 90 जो होता है वो
कैपिटल जेड का होता है, ऐसे ही स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है। तो इस कोड्स के बेसिस पे वो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में। सो ये पूरा पार्ट इस तरह से वर्क करेगा, स्ट्रिंग इस तरह से वर्क करता है, ओके ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट और देख सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन के लिए हम एक पार्ट और देख लेते हैं, दैट इज सॉरी ओके, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ डिक्शनरी, ओके। पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज जो होती हैं वो लिस्ट की तरह ही एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह ही, लेकिन इसमें छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है? ये की वैल्यू पेयर्स पे वर्क करती है, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स का मतलब क्या है? की वैल्यू, ठीक, की वैल्यू पे वर्क करती है, ठीक है। की वैल्यू पे कैसे वर्क करेगी? तो अगर मुझे एक डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसके लिए होते हैं? एक लिस्ट के लिए होते हैं। मैं किसका यूज करूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स का, ओके। कर्ली ब्रैकेट्स के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा? एक की मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमने लिस्ट में देखा था कि उसमें इंडेक्सेस होते हैं, स्ट्रिंग में देखा उसमें भी इंडेक्सेस होते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं होते, इंडेक्सेस भी हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। जैसे मैंने इंडेक्स का नाम दे दिया कैपिटल ए, मैंने यहाँ की कैपिटल ए पर क्या वैल्यू स्टोर होनी चाहिए कैपिटल नाम की इंडेक्स पर। यहाँ पे इंडेक्स को हम लोग कीज बोल रहे हैं, ओके। तो ए नाम की की पर क्या स्टोर होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ 100, ओके। फिर मैंने कॉमा करके एक और पेयर बनाया। क्या पेयर बनाया? मैंने कहा कि कैपिटल बी नाम की जो की होगी उस पर क्या स्टोर होना चाहिए? उस पर 200 स्टोर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और की बनाई जिसमें मैंने रख दिया कैपिटल सी, ओके। कैपिटल सी में क्या स्टोर होना चाहिए? 300 स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा पार्ट लिखूं यहाँ पर, क्या डिक्शनरी, ठीक है, पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। चलो, मुझे क्या करना है? एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे या स्पेसिफिक की पे रखी हुई वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक चीज पता है, जब भी हमें वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना होता है तो हम लिस्ट का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं या स्ट्रिंग का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। डिक्शनरी में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, ओके। आई बात समझ में? सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे? किसी भी एक की का नाम, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया सी, ठीक है। सी को पास करने के लिए हम लोग डायरेक्टली सी नहीं लिख सकते क्योंकि वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। मुझे यहाँ पे सिंगल कोट्स में सी लिखना रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि डिक्शनरी की सी की पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है? 300 रखा हुआ है। क्या आउटपुट आ गया? 300। तो स्पेसिफिक की को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक की को एक्सेस करने के लिए इस तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसे कैपिटल ए लिखा तो क्या आ गया? क्या मैं पर्टिकुलर पार्ट में किसी वैल्यू को रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या एरर दे रहा है? की एरर, ठीक है। इस नाम की कोई की अवेलेबल नहीं है। तो जो भी लेफ्ट साइड हम लोग लिख रहे हैं वो सारी कीज होती हैं, ठीक है। और कॉमन से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं की और वैल्यू को, ओके। सो हम वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ की से कर सकते हैं। जैसे नंबर से हम लोग इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा था, लिस्ट में हमने कोई नंबर दे दिया तो 10 बोला तो वो इंडेक्स लेकर के आ जाए, ठीक है। तो ऐसा उल्टा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू से हम लोग की पर नहीं आ सकते। आई बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करता है, ओके। क्या मैं इस पे भी कुछ कुछ फंक्शंस यूज कर सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ डिक्शनरी, कितनी लेंथ है इसकी? 3। तो नंबर ऑफ कीज जितनी होंगी उसके बेसिस पे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं की वैल्यू 2 काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स नहीं है इसमें, सिर्फ 3 एलिमेंट्स। जितनी कीज होंगी उतने रिटर्न करेगा, ओके। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सिंपल सा पार्ट, दैट इज मैक्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? सी है। क्यों है कैपिटल सी? तो ऑब्वियसली ASCII कोड में देखो कैपिटल सी कितना होगा? 67, ठीक है। तो ASCII कोड के हिसाब से वो कैपिटल सी को कर रहा है। और कंपैरिजन किसका करवा रहा है? सिर्फ और सिर्फ कीज का, ओके। वैल्यूज तक नहीं जा रहा वो, ठीक है। मैंने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, चला करके देखें मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कैपिटल ए ऑब्वियसली इसका ASCII कोड 65 सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा, ओके। चलो, एक और कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? मॉड्यूल्स का, ठीक है। मॉड्यूल्स कैसे वर्क करती हैं? मॉड्यूल्स जो होते हैं वो पाइथन में, जैसे कोई भी फाइल तुम लिख रहे हो, ठीक है। तुमने एक पाइथन का कोड लिखा, उसको सेव किया। मैंने उसको सेव किया hello.py से, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। तो अगर मॉड्यूल जिसको जो भी तुम कोड लिखते हो वो मॉड्यूल ही होता है, ठीक है। अभी मैं इसको मॉड्यूल नहीं बोलूंगा जिसको मैं कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जुपिटर फाइल है, इसका एक्सटेंशन .ipynb है, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डायरेक्टली कोड तुम लिख रहे हो उसको py से सेव कर रहे हो, ठीक है। वो पर्टिकुलर पार्ट मॉड्यूल होता है, ठीक है। अगर हम लोग नीचे से बिल्कुल छोटे पार्ट से लेकर के चले, जैसे मुझे
कोई कोड लिखना है तो किसकी हेल्प से ये इंस्ट्रक्शन बना? सिंगल लाइन ऑफ कोड क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से बना? कैरेक्टर्स की हेल्प से। कैरेक्टर्स किसकी हेल्प से बने? कैरेक्टर बने नंबर्स से, जो अभी हमने ASCII कोड दिखा। नंबर्स किससे बने? नंबर्स बने बाइनरी से। और फिर सिस्टम को समझ में आया तो बाइनरी से नंबर बने, नंबर से कैरेक्टर बने, कैरेक्टर से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन बना, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक प्रोग्राम बना। जब हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे दिए तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है, क्लियर। उस प्रोग्राम को हम कलेक्शन करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर बनता है, ओके। सो अभी फिलहाल मैं उन प्रोग्राम्स पे आ रहा हूँ। तो अगर मैंने जो कोड लिखा है उसको मैं सेव करता हूँ .py में, तो वो मॉड्यूल कहलाता है, ओके। आई बात समझ में? सो अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं। जैसे उनमें से एक है इंपोर्ट मैथ, ठीक है, मैथ नाम का, ओके। मैथ नाम का ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना हुआ है। उसको अगर मुझे लेकर के आना है तो वो किस फॉर्मेट, किसकी हेल्प से आएगा? इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से, ओके। इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट पाई। पाई वैल्यू सबको पता है क्या? सॉरी, इसमें एरर नहीं आया, ओके। सो .py जो होगा वो कैसा होगा? जैसे इंटरनली यहाँ पे क्या रखा होगा? इंटरनली मैथ .py नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ है पाइथन में, ओके। अगर उसको तुमको यूज करना है तो डायरेक्टली लिख दो इंपोर्ट मैथ, तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। जो भी इस py के अंदर कोड लिखा हुआ है, जो भी प्रोग्राम्स बने हुए हैं, वो सब अपने पास आ जाएंगे। जो वेरिएबल्स बने हुए हैं जैसे py नाम का, उनमें वेरिएबल एक इंटरनली बना के रखा है, ओके। उस py नाम का वेरिएबल अगर मुझे py नाम का पाई एक्सेस करना है तो मैथ डॉट लगा के मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, सिंपल। तो मैं डॉट लगा के एक्सेस करूंगा, देखो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ओके। तो मैथ मॉड्यूल में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सारे तुमको मिल जाएंगे, साइन कॉस वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम उसकी डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। हमारा समझना ये था कि पहले से जो मॉड्यूल बने हुए होते हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। इंटरनली वो .py एक्सटेंशन में होते हैं। हम अपने भी मॉड्यूल, जितने भी पाइथन फाइल बनाएंगे वो सब .py एक्सटेंशन में ही होगी, ओके। ओके, सो अगर मैं पैकेज की बात करूं तो पैकेज इज जस्ट अ फोल्डर, ओके। जैसे मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल बनाई है, पाइथन फाइल, तो हम यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पैकेज का नाम जो है वो अभी मैं पैकेज ही दे रहा हूँ, ठीक है, पैकेज नाम है, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल रखी हुई है दैट इज math.py, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर और भी फाइल्स रखी हूँ, तो इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल hello.py रखी हुई है, ओके। इस टाइप की 2 फाइल्स रखी हुई है। तो ये मेरा पैकेज है, पैकेज के अंदर ये पर्टिकुलर पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। चलो, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो क्या कर सकते हैं? तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट फंक्शन नहीं लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा अगर डायरेक्टली इंपोर्ट, मैं लिखा इंपोर्ट hello.py, सॉरी पाई नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हेलो, ठीक है। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि उसको हमने एक फोल्डर के अंदर रखा है। अगर मुझे एक फाइल के अंदर रखे हुए वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर मुझे पैकेज के अंदर रखे हुए किसी मॉड्यूल को एक्सेस करना हो तो भी हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर एक तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट हेलो। भाई बात समझ में? पैकेज नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर पैकेज नेम यहाँ पर ऐसा कुछ होता, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर अलग से फिर से बना देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। पैकेज का नाम मान लेते हैं अभी कैलकुलेटर है, ठीक है। इसके अंदर math.py है, इसके अंदर add.py है, इसके अंदर हमने लिखा multiply.py। इस टाइप के अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अगर मुझे multiply.py को एक्सेस करना है तो क्या करें? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट मल्टीप्लाई, ओके, सिंपल। इस तरह से क्या होगा, मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बने हुए नहीं है फंक्शन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरर आएगा, ओके। अगर हम बना सकते हैं या पहले से अवेलेबल फंक्शंस हैं तो हम उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो पैकेज के अंदर जाने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ओके, फ्रॉम दिस इंपोर्ट दिस, ओके। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक भी जा सकते हैं हम लोग। क्या स्पेसिफिक जाएंगे? जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा मुझे मैथ मॉड्यूल के अंदर पाई तक पहुंचना है, क्या करूं? सो जैसे मैं डॉट लगा के यहाँ नहीं लिखना चाह रहा तो मैं एक सिंपल सी लाइन लिख सकता हूँ। मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ठीक है। तो पाई यहाँ पर आ चुका होगा। तो हम लोग अगर प्रिंट करवा के देखें कि पाई जो होगा वो क्या आउटपुट देगा, तो देखो डायरेक्टली आ गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर कोई चीज लेकर के आनी है स्पेसिफिक, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
अगर पैकेज के अंदर से कुछ लेकर के आना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग फ्लास्क का यूज करेंगे। ओके, हम लोग यूज करने वाले हैं फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क जो है वो फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, सो हम इसका यूज करेंगे और इस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ओके, क्लियर। सो यहाँ तक जिस भी लोगों के जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। ठीक है, और दैट्स इट।